program, I wish to read out certain information which I collected from the Green Humanities. Well, Dr. Purushottam Agrawal is acknowledged as a renowned scholar across the globe. He was the chairperson of the Center of Indian Languages, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Dr. Agrawal also served the most prestigious institution of our country, Indian Public Service Commission, as a member from 2007 to 2013. He has the distinction of becoming visiting professor at the Faculty of Oriental Studies, Cambridge University, and also at Il Colegio in Mexico, the College of Mexico. He has authored a number of books which are still acclaimed as the most memorable contributions in the realm of Hindi literature. अकथ कहानी प्रेम की कवि कविता और उनका समय, published in 2009, is a phenomenal literary creation, and it has established Dr. Agrawal as a profound scholar, not in his country, but abroad. This, in fact, is a matter of great pride for all of us. He, in fact, is known in our country for his uncommon critical insight, with which he researched even the hidden, multi-layered meanings of the Hindi. Because today, many of us know how to compare holds the profound sensibility of our country. Another book named Padmavat, an epic love story, published in 2018, which is an English translation of an commentary on Malik Muhammad Jassi's epic poem. In 2016, he wrote his first novel, Nakohas, which builds a Kafkaesque fantasy around the politics of hurt sentiments. It was translated in English and Marathi. Who is Bharat Mata is another milestone to the academic career of Dr. Purushottam Agrawal, which was based on and selection from Pandit Jawaharlal Nehru, classic books such as An Autobiography, Glimpses of World History, and the Discovery of India. His speeches, essays, and letters, some of his revealing interviews, he also included. The final section of the book comprises evaluation of Nehru by the father of our nation, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Sardar Patel, Maulana Azad, Abdullah Ashraf Ali, Sheikh Abdullah, Ramdhari Shivekar, Ali, Sardar Jafri, Baldev Singh, Martin Luther King Jr., Richard Attenborough, Lee Kuan Yew, and Atal Bihari Vajpayee, among others. The book here underlines Nehru's political and intellectual journey as a precondition for India's survival as a democratic polity, as a human, compassionate society. The book really holds a particular significance at a time when nationalism and the slogan Bharat Mata Ki Jai are being used and exercised to construct a militant idea that excludes millions of citizens and residents as well. Besides these academic attainments of Dr. Purushottam Agrawal, he in fact was a very popular panelist of Indian TV debates
him to express his views on the topic Indian modernity and decolonization, भारतीय आधुनिकता एवं विनिवेशीकरण पर हम सभी प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब को अब सुनेंगे। तो मैं इस व्याख्यान के बहाने अपने पिछले 25-30 साल की चिंताओं और उनसे उत्पन्न कामों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक तरह से वरिष्ठ और युवतर विद्वानों के सामने अपने काम की एक विनम्र रिपोर्ट होगी और इस उम्मीद में होगी कि आप लोगों की टीका टिप्पणियों से एक विद्यार्थी की तरह मुझे सीखने का और अपने तर्क को और अधिक सूक्ष्मतर करने का, उसमें अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा। जिसे आजकल बहुत धूमधाम से रीउपनिवेशीकरण कहा जाता है या डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है, उस पर तरुण जी को याद है सन 2000 में मैंने एक निबंध लिखा था, विचार का आनंद, और वो मेरे निबंध संकलन में भी छपा था, विचार का आनंद। उस निबंध में और उस पुस्तक में मेरी केंद्रीय चिंता यही थी कि आधुनिकता क्या है, आधुनिकता का स्वरूप क्या है। जैसा कि अभी संकेत किया वाइस चांसलर साहब ने, भारतीय या किसी भी परंपरा की आप बात करें, क्या परंपरा और आधुनिकता में कोई अनिवार्य विरोध है या आधुनिकता परंपरा का स्वाभाविक विकास है? इन सब चीज़ों पर उस छोटी सी किताब में विचार था, सूत्र रूप में विचार था। डॉक्टर साहब का मुहावरा उधार लेकर कहूँ तो वो किताब लगभग एक गणितज्ञ की तरह लिखी गई। हालांकि मेरा गणित से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो किताब सूत्र रूप में लिखी गई थी और बहुत सारे लोगों को बहुत बोझिल और उबाऊ लगी। मैंने महसूस किया कि संभवतः इन सूत्रों को खोलने की ज़रूरत है, उनका और कुछ विस्तार करने की ज़रूरत है, उन पर विचार करने की ज़रूरत है। और एक तरह से पिछले लगभग 24-25 साल से जो मेरा इतिहास संबंधी चिंतन है, जो इतिहास संबंधी काम है, वो उन सूत्रों के ही विस्तार और उन सूत्रों से जूझने का ही, उनके सही गलत को जांचने का ही एक आयास है, जिसको मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। उस निबंध में मैंने एक बात कही थी कि एक स्थिति ये है कि एक आधुनिकता को एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट माने, जैसा यूरोप में माना जाता था एक ज़माने में, और ऐसा मान लें कि यूरोप आधुनिक हुआ, उसके बाद उपनिवेशीकरण के जरिए बाकी दुनिया में आधुनिकता पहुंची। और इसीलिए बहुत से लोग मानते थे, अभी भी मानते हैं, कि सारे अन्याय और अत्याचार के बावजूद उपनिवेशीकरण की मानवीय इतिहास में एक प्रगतिशील भूमिका रही, क्योंकि भारत जैसे समाज जो इतिहास के बाहर थे, विच वर आउटसाइड हिस्ट्री, जहाँ सत्ता तंत्र में कोई बुनियादी बदलाव नहीं होता था। समाजशास्त्री डूमा ने 1966 में किताब लिखी थी होमो हायरार्किकस, और उसमें प्रतिपादित किया था कि भारत का सत्ता तंत्र पिछले 2500 साल से लगभग वैसा ही चला है। इसलिए दिस कंट्री, दिस सोसाइटी हैज बीन आउटसाइड हिस्ट्री। तो ये उपनिवेशीकरण की एक प्रगतिशील भूमिका मानी जाती थी कि उसके कारण भारत और ऐसे दूसरे समाजों में आधुनिकता का प्रवेश हुआ या इतिहास का प्रवेश हुआ। इस समझ पर सवाल भी उठाए गए हैं, जिनकी थोड़ी बहुत चर्चा मैं आगे चल के करूँगा। उस पुस्तक में मेरी मुख्य चिंता ये थी कि एक तरीका ये है, प्रचलित तरीका, कि आप आधुनिकता को एक यूरोपियन प्रोजेक्ट माने और बाकी सारे समाजों को उस प्रोजेक्ट का लाभार्थी माने। आधुनिकता यूरोप का उत्पाद है, बाकी जगह वो एक्सपोर्ट हुआ है। एक समझ ये बनी कि आधुनिकता अपने आप में एक गड़बड़ चीज़ है। आधुनिकता के कारण हमारे समाजों की संरचना, परंपरा सब ध्वस्त हो गई है। इसलिए अब हमें आधुनिकता से पिंड छुड़ाकर पूरी तरह पारंपरिक हो जाना चाहिए। विउपनिवेशीकरण का एक अर्थ ये निकाला गया कि जो भी चीज़ें यूरोप से आई हैं या यहाँ तक के जो इस्लाम से आई हैं, उन सबसे मुक्त होकर ही हम अपनी सच्ची भारतीयता प्राप्त कर सकते। मेरी उस निबंध में प्रस्तावना ये थी कि ये पेंडुलम का स्वभाव है कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर आप जाए। मानवीय चेतना ऐसी नहीं है। मानवीय चेतना को एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। अब आप मुझी को ले लीजिए, मैं स्कूल का आया हूँ, मुझे कम खाना चाहिए, डाइटिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर डाइटिंग के नाम पर मैं सीधे आमरण अनशन पर उतारा हूँ
तो मरण ही होगा, स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा। तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर जाना ये मानवीय स्वभाव और इतिहास के अनुकूल नहीं। ये उस पुस्तक की केंद्रीय स्थापना थी और इसीलिए मैंने उसमें ये सवाल उठाया था कि क्या हम आधुनिकता की एक ऐसी कल्पना कर सकते हैं जिसमें यूरोप के बाहर जो आधुनिकता के मोमेंट्स रहे, आधुनिकता के ऐतिहासिक क्षण रहे हैं, उनकी भी गुंजाइश हो और उनके आधार पर आधुनिकता को परिभाषित किया जाए। दूसरे शब्दों में, क्या हम आधुनिकता की यूरो केंद्रित अवधारणा के स्थान पर एक सचमुच विश्वव्यापी अवधारणा उत्पन्न कर सकते हैं? यही काम करने की कोशिश मैं पिछले 20-25 साल से कर रहा हूँ और मुझसे पहले बहुत से लोग करते रहे, जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला सवाल यह है कि आधुनिकता का तात्पर्य क्या है? आधुनिकता का मतलब केवल औद्योगिकरण नहीं है। आधुनिकता का मतलब, और जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, किसी भी परिघटना की परिभाषा ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर होती है। जब आप लोकतंत्र कहते हैं तो उसका आशय कुछ ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर ही प्राप्त किया जाता है और वो आशय उस ऐतिहासिक अनुभव को कितना अपने आप में धारण करता है इससे निर्धारित होता है कि वो आशय सही है या गलत। तो इसलिए आधुनिकता है क्या, क्या मतलब है आधुनिकता? आम बोलचाल में आधुनिकता का अर्थ होता है अद्यतन, आज का। अंग्रेजी में भी यही अर्थ होता है एटिमोलॉजिकली, वहीं से ये बात बनती है। मोड, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी जो इस समय है। लोक प्रचलन में हम देखते हैं मॉडर्न का मतलब एकदम तत्काल का, भी बहुत ही मॉडर्न चीज़ है सब। और अगर आप कुछ खास तरह के उपन्यास वगैरह पढ़ें तो इसीलिए उसमें मॉडर्न होना एक तरह का नकारात्मक भाव माना जाता है कि आप एकदम नई नई चीज़ें करते हैं। मॉडर्निटी केवल नएपन तक सीमित नहीं है। इतिहास में मॉडर्निटी एक ऐतिहासिक क्षण को सूचित करती है। जब हम पूरे इतिहास को देखते हैं और उसमें कहते हैं यूरोप के इतिहास को या दुनिया के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो आधुनिक हम एक समय से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई कहे 16वीं सदी से, कोई कहे 18वीं सदी से। भारत में लोग कहते हैं कि आधुनिकता आरंभ होती है राजा राममोहन राय से, यानी 18वीं सदी से। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन आमतौर से माना जाता है। तो आधुनिक ऐतिहासिक विकास क्रम की एक स्टेज, एक अवस्था है और वो कैसे पहचानी जाती है, सबसे पहले हम इसको देखें। और इस लिहाज से समाजशास्त्री और बहुत जीवन के सभी अध्ययनों और क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मैक्स वेबर ने आधुनिकता को अपने ढंग से और बहुत तार्किक ढंग से परिभाषित किया। उन्होंने ये नोट किया कि यूरोप के इतिहास में 15वीं सदी का समय रेनेसांस का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म या पुनर्जागरण। 5वीं सदी से 15वीं सदी तक के यूरोप को अंधकार काल कहा जाता है, क्योंकि चर्च का आधिपत्य था पूरी तरह से। किसी तरह की रचनात्मकता, सृजनात्मकता की गुंजाइश नहीं थी। ईश्वर और रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को डेप्यूटी कहा जाता था, ईश्वर का डेप्यूटी। चर्च को जीसस का शरीर कहा जाता था और उसके बारे में कोई सवाल उठाना अंतिम अपराध माना जाता था। और यूरोप भूल गया था कि ईसाइयत के यूरोप पहुंचने के पहले जो यूरोप की सोच, ज्ञान, विज्ञान, दार्शनिक परंपरा थी वो कितनी विकसित थी, कहाँ तक पहुंची। प्लेटो और अरिस्टोटल, जिनके नाते आज यूरोप गर्व करता है, ये सब डिस्कवरीज 15वीं सदी के पास। 15वीं सदी तक के यूरोप में ये सब लोग भुला दिए। उसके बाद ये जो सारी ग्रीक फिलॉसफी थी, चिंतन था, ये अरबी अनुवादों में संरक्षित था। यूरोप की किसी भाषा में ये बचा नहीं था, अरबी अनुवादों में ये संरक्षित था। अरबी अनुवादों से इसको पुनः यूरोप की भाषाओं में लाया गया और तब से माना जाता है कि नव जागरण या पुनर्जागरण आरंभ। सबसे पहले कला के क्षेत्र में जब मानवीय आकारों पर ध्यान दिया गया, माइकल एंजेलो और इस तरह के दूसरे लोग, दूसरे कलाकार जिन्होंने मानवीय आकृतियों की रचना की, ये जो चीज़ें हुई इनको कहा जाता है रेनेसांस या यूरोप का पुनर्जन्म। और इसका सीधा संबंध व्यापार से।
अरब लोगों के संपर्क में उस समय के यूरोपियन व्यापार के ही जरिए आए। इसलिए आधुनिकता या रेनेसांस के उदय का संबंध व्यापार के विस्तार से जोड़ा जाता है। इसके बाद आरंभिक आधुनिकता का काल माना जाता है 16वीं सदी से, जिसमें कि सोच विचार के ढंग बदले। मैक्स वेबर के अनुसार डिसेक्युलराइजेशन यानी पवित्रता की धारणा को चुनौती दी गई। चर्च के कहने भर से कोई चीज अकाट्य नहीं हो जाती, आपको एक्सप्लेन करना होगा। मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा। मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक चर्च के ही एक पादरी थे, लेकिन उस समय चर्च में एक प्रथा प्रचलित थी जिसको इंडल्जेंस कहते हैं। यानी अगर आपने पाप किए, जीवन में पाप सभी करते हैं, और जैसी सुविधा चर्च देता था उसके बाद तो पाप करने पर कोई रोक ही नहीं लगती। तो आपने कितने भी पाप किए हों, लेकिन चर्च को एक निश्चित राशि आप दान में दे दें तो आपको ईसा मसीह या उनके पिता अर्थात परमात्मा के नाम वो महोदय एक पत्र लिख देंगे कि इन्होंने चर्च की बड़ी सेवा की है, इनको नर्क में ना झोंका जाए, और वो आपके कॉफिन में रख दी जाएगी चिट्ठी, और स्वर्ग में आपकी सीट सुरक्षित होगी। दिस वॉज कॉल्ड इंडल्जेंस। इंडल्जेंस के इसी शब्द से अंग्रेजी में इंडल्जेंस शब्द बना। काइंडली इंडल्ज मी, मुझ पर कृपा कीजिए, ये वहीं से बना। तो इंडल्जेंसेस दिए जाते थे लाखों करोड़ों रुपए के बदले में, और इस तरह बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी। चर्च में करप्शन बहुत ऊंचे पैमाने पर था, हर तरह का। मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक चर्च के ही पादरी थे। उन्होंने इस पर सवाल उठाए। जाहिर है कि किसी भी सत्ता तंत्र की तरह चर्च ने उनकी परवाह नहीं की। तो मार्टिन लूथर जब चर्च में काम करते थे, विटनबर्ग जर्मनी में वो जगह है, मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला है, तो उन्होंने अपने चर्च के दरवाजे पर वो अपने 95 सवाल चिपका ठोक दिए दीवार पे, और वो कहलाते हैं मार्टिन लूथर की 95 थीसिस। और इसको यूरोप के इतिहास में आधुनिकता का आरंभ हुआ था। 1517 या 18 में ये घटना हुई थी, जब मार्टिन लूथर ने विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर अपनी 95 थीसिस चस्पा कर दी। जाहिर है चर्च ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, मार्टिन लूथर अलग हो गए, प्रोटेस्टेंट चर्च का उन्होंने गठन कर लिया, और बाकी इतिहास के जानकार जानते हैं। तो दिस वॉज डिसेक्युलराइजेशन, पवित्रता की अकाट्य धारणा का खंडन। केवल चर्च के कह देने से कोई चीज नहीं मानती। दूसरी चीज थी इसी से जुड़ी हुई वर्नाकुलराइजेशन। बाइबल केवल लैटिन में नहीं उपलब्ध हो, बाइबल को अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच में भी उपलब्ध होना चाहिए, ताकि आम लोग बाइबल स्वयं पढ़ सकें। और ज्ञान विज्ञान भी केवल लैटिन के जरिए ना हो, बल्कि जिन्हें वर्नाकुलर कहा जाता था। वर्नाकुलर अंग्रेजी में एक तिरस्कार सूचक शब्द। वर्नाकुलर यानी देहातियों की जुबान। इसलिए हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज थी, सारी हिंदुस्तानी जुबानें वर्नाकुलर लैंग्वेज। अभी भी अंग्रेजी का प्रेस अपने आप को नेशनल प्रेस कहता है, और हिंदी, उर्दू या बांग्ला के अखबारों को वर्नाकुलर प्रेस कहता है। तो वर्नाकुलर यानी गंवारों की, गैर पढ़े लिखे लोगों की जुबान। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार बड़े अपमानजनक ढंग से शुरू किया शब्द भी हम अपना लेते हैं, हमें उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। तो मैं वर्नाकुलर शब्द के आज प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं मानता। उसकी जो भी अपनी एटिमोलॉजी है वो रही होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि इंडल्जेंस रोमन कैथोलिक चर्च की एक प्रथा से आता है। रेक्टर शब्द, यहाँ रेक्टर साहब बैठे हुए हैं शायद, रेक्टर शब्द जो है वो चर्च के ही संगठन से आता है। चांसलर और वाइस चांसलर भी चर्च के ही संगठन से आने वाले शब्द। तो इस वजह से हम इन शब्दों को त्याग नहीं। प्रोफेसर भी वहीं से आने वाला शब्द है, सब वहीं से आने वाले शब्द है। तो इनको हम इसलिए नहीं त्याग देते कि वो रोमन कैथोलिक चर्च की संस्था से, इवन मिनिस्टर। तो इसलिए वर्नाकुलर का प्रयोग करने में आज कोई हर्ज नहीं है। एनीवे, तो मार्टिन लूथर, मैक्स वेबर ने दूसरी चीज ये पहचानी कि डिसेक्युलराइजेशन के साथ साथ ही वर्नाकुलराइजेशन, लोक भाषा करना, और उसके साथ तर्कवाद का उदय, रैशनली, हर चीज को परखने की। और ये सारी प्रक्रिया यूरोप में 16वीं सदी में थोड़ा आगे पीछे चल के आ रही है। इसको यूरोप के इतिहास में मानक रूप से अर्ली मॉडर्निटी कहा जाता है।
आरंभिक आधुनिकता। और इसके बाद इसकी परिणति 18वीं सदी के उस घटनाक्रम में होती है जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, प्रबोधन कहते हैं, और जिसमें एक तरह से तब तक चला आ रहा सारा ज्ञान विज्ञान उलट पुलट जाता है, नए तरह के सवाल उठने लगते हैं, सत्ता तंत्र के संरचना को चैलेंज किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जिसमें एक सर्वथा नया पॉलिटिकल इडियम, सर्वथा नया पॉलिटिकल सिस्टम उत्पन्न होता है। तो ये जो स्थितियां हैं, इन सबको मिला जुला के यूरोप के संदर्भ में आधुनिकता का ऐतिहासिक विकास क्रम माना जाता है। देश भाषाकरण, तर्कवाद का उदय, व्यक्ति सत्ता की खोज, इंडिविजुअल, व्यक्ति महत्वपूर्ण, वो किस पद पर है, कहाँ नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जर्मनी के एक साधारण चर्च का पादरी मार्टिन लूथर पोप को चुनौती दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति के रूप में वो महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण सवाल है। हायरार्की में वो कितना भी नीचे हो मार्टिन लूथर, लेकिन उसको अधिकार है चर्च पर सवाल उठाने। आप इस बात पर ध्यान दें कि जब मैं यूरोप के संदर्भ में आधुनिकता के इतिहास पर विचार करता हूँ तो मुझे भारतीय परंपरा का एक समुच्चय याद आता है, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम सब जानते हैं। वहाँ उस परंपरा में इसको एक व्यक्तिगत जीवन की पद्धति या सूत्र के रूप में अपनाया गया है। यूरोप का इतिहास पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि इसमें ऐतिहासिक विकास का भी एक सूत्र नहीं है। जब आपको अपनी कामनाओं की, काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं होता, हम सब जानते हैं, जब आपको अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए अर्थ का विस्तार करना हो, तब आप धर्म और मोक्ष की धारणाओं का भी बदलाव महसूस करते हैं। यूरोप में व्यापार बढ़ा, भारत और चीन के साथ उनका व्यापार था, इस काल में अरब के साथ उनका व्यापार बहुत बढ़ा। व्यापार बढ़ा तो ज़रूरतें बढ़ी, ज़रूरतें बढ़ी तो एक्सप्लोरेशन हुए, और उसी के साथ साथ रेनेसांस हुआ। जो ज्ञान विज्ञान यूरोप के लिए खो गया था वो पुनः प्राप्त किया गया अरबी अनुवादों के जरिए, और उसके फलस्वरूप आपकी धर्म की धारणा बदली। नैतिकता, धर्म का अर्थ नैतिकता से ही ले रहा हूं। क्या नैतिक? चर्च के आदेश का खंडन करना क्या सचमुच अनैतिक? बाइबल को सीधे पढ़ने की मांग करना क्या सचमुच अनैतिक? तो नैतिकता की धारणा बदली और संगठित धर्म की धारणा तो पूरी तरह बदली, और इसी के साथ मोक्ष की धारणा बदली। इंडल्जेंस के जरिए मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर आपको ईसा मसीह के स्वर्ग में जाना है, उनके पिता के स्वर्ग में प्रवेश करना है, किंगडम में प्रवेश करना है, तो इंडल्जेंस से काम नहीं चलेगा। आपको मॉरल लाइफ जीनी, नैतिक जीवन जीना। आप जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट और काल्विनिस्टिक चर्च में, परंपरा में नैतिक जीवन पर इतना अधिक बल है कि आगे चल के वो लोग प्यूरिटन कहलाते हैं। वहाँ नैतिकता के इतने कड़े प्रतिमान स्थापित कर दिए गए, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग करते हैं। मॉरल पुलिसिंग आप लोग जानते होंगे ना, जैसा वो 14 फरवरी को प्रेम व्यक्त करना अनैतिक है। वैसे तो प्रेम व्यक्त करना कुछ लोगों के हिसाब से साल के 365 दिन अनैतिक है, लेकिन उस दिन खास करके अनैतिक है। और तमाम सारी मॉरल पुलिसिंग होती है, ऐसे कपड़े क्यों पहने, वैसे कपड़े क्यों पहने। तो ये सब प्यूरिटनिज्म कहना है, और इसका ऐतिहासिक सूत्र जो है वो वही है। नैतिकता की इतने कड़े प्रतिमान, लेकिन कर वो एक अलग बात है। मुख्य बात यह है कि आपको इंडल्जेंस के जरिए मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको नैतिक जीवन जीना हो। ये सब यूरोप के इतिहास में भारी उलट पुलट कर देने वाली ये सब चीजें। हम आप प्रोटेस्टेंट चर्च के लिए ताली बजा रहे हो या प्यूरिटनिज्म के लिए? तो इन सब चीजों से हम आधुनिकता को पहचानते। अब मेरा एक सीधा सा सवाल ये है, और एक बात और ध्यान रखें, इस सब के बाद यूरोप में औद्योगिकरण आता है, एनलाइटनमेंट के साथ ही वो एक अलग समानांतर प्रक्रिया है उपनिवेशीकरण की, और उपनिवेशीकरण की वजह से जो लूट होती है दुनिया भर में। यानी आप कल्पना कीजिए कि भारत से वो सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, भारत के व्यापारियों को चांदी में पेमेंट करते हैं। वो चांदी यूरोप में नहीं पैदा हुआ, वो चांदी लैटिन अमेरिका से लाई है।
चांदी लैटिन अमेरिका से आती है, गुड्स भारत से जाते हैं, यूरोपीय साम्राज्य के जरिए वो चांदी भारत तक पहुंचती। इसीलिए इतिहासकारों ने खोजा है, औरंगजेब के जमाने के चांदी के सिक्के लैटिन अमेरिका में मिले। तो मैं ये कह रहा हूं मित्रों कि एक पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया को अगर समग्रता में देखें तो औद्योगिकरण इस स्टेज में आखिरी पड़ाव, आधुनिकता, आरंभिक आधुनिकता, उसके बाद एनलाइटनमेंट या प्रबोधन, और उसके बाद औद्योगिक, यानी आधुनिकता औद्योगिकरण के बाद आए ये कतई जरूरी नहीं है। यूरोप में ऐसा नहीं है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि भारत आधुनिक नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण नहीं, ये ऐतिहासिक रूप से एक गलत पद्धति का पालन करें। क्योंकि अगर ये पद्धति आप फॉलो करें, इसका पालन करें, तो यूरोप में भी आधुनिकता का इतिहास आपको 19वीं सदी से पहले नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि यूरोप का औद्योगिकरण 19वीं सदी में आरंभ हुआ, प्रॉपर औद्योगिकरण। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो फिर कुछ सवाल पैदा हुआ, और वो सवाल ये है कि आधुनिकता के लक्षण हमने जिनको पहचाना है, मैक्स वेबर ने पहचाना, डिसेक्युलराइजेशन, वर्नाकुलराइजेशन, रैशनैलिटी, इंडिविजुअल, ये 16वीं सदी के केवल यूरोप में थे या दुनिया के अन्य समाजों में? अगर दुनिया के अन्य समाजों में भी थे तो उन्हें भी आपको आधुनिक मानना चाहिए। अगर नहीं थे तो बात सही है कि आधुनिकता का जन्म यूरोप में हुआ और उसके बाद वो बाकी जगह पहुंची, तो सही है ये बात। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? मैं अन्य समाजों की चर्चा नहीं करना चाहता, अभी समय नहीं है हमारे पास। मैं अब सीधे भारतीय समाज पर केंद्रित करूंगा। मार्टिन लूथर, जैसा मैंने आपसे कहा और हम सब इतिहास में जानते हैं कि बहुत प्रगतिशील और क्रांतिकारी काम उन्होंने किए, लेकिन मार्टिन लूथर उतने ही यहूदी विरोधी थे जितना रोमन कैथोलिक चर्च। मार्टिन लूथर की एक बहुत मशहूर किताब है, ज्यूज एंड देयर लाइज, यहूदी और उनके झूठ, और उसमें उन्होंने जर्मन ईसाइयों से अनुरोध किया है कि बहुत शर्म की बात है कि ये गंदे लोग हमारे समाज में अभी भी हैं, इनको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मैं लंबे उदाहरण नहीं देना चाहता, वो डिस्गस्टिंग होंगे, लेकिन वो किताब इंटरनेट पर आसानी से सुलभ है, आप पढ़ सकते हैं, ज्यूज एंड देयर लाइज। मार्टिन लूथर ज्यूज से बहुत चिढ़ते थे, रोमन कैथोलिकों से बहुत चिढ़ते थे, और रोमन कैथोलिक उनसे चिढ़ते थे। रोमन कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच में भारी झगड़े हुए, हिंसक युद्ध हुए, एक दूसरे के ग्रंथ जलाए गए। हालत ये हुई कि दक्षिण भारत में जो ईसाई पादरी आते थे, और रोमन कैथोलिक जो है प्रोटेस्टेंटों की बाइबल जला देते थे, और प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिकों की बाइबल जला देते थे, और ये सब इतिहास में दर्ज है। भारत में 16वीं सदी में कुछ हो रहा था। भारत में 16वीं सदी और उसके कुछ पहले कबीरदास हुए, उनके कुछ समय बाद महाराष्ट्र में तुकाराम हुए, उनके कुछ समय बाद उत्तर भारत में तुलसीदास हुए, कबीर के लगभग समकालीन या उनसे भी पहले कन्नड़ में, कर्नाटक में बसवा हुए। इन सबके परस्पर घोर विरोध। कबीरदास ने जिस तरह की तीखी आलोचना की है, तुलसीदास ने निर्गुण संतों की उससे कम तीखी आलोचना नहीं की। लेकिन आप ध्यान दें कि राजनीतिक हिंसा बहुत हुई है और सांप्रदायिक हिंसा भी बहुत हुई है, ये जान लीजिए। वैरागियों और शैवों के बीच में बहुत हिंसा हुई है। लेकिन आप ध्यान दें कि तुलसीदास ने बहुत कड़ी बातें कहते हुए भी, या कबीर ने बहुत कड़ी बातें कहते हुए भी, अपने समर्थकों, मित्रों और फैंस से, फॉलोअर्स से ये नहीं कहा कि सब सबड़पंथियों को पकड़ पकड़ के मार लो। ये नहीं कहा कि कैसे लोग हो कि तुम्हारी काशी में अभी भी निर्गुणपंथी जीवित हैं और बचते, ये नहीं। द आर्ग्यूमेंट वॉज नॉट अलाउड टू बी डिजेनरेटेड इनटू वायलेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, वहाँ बाइबल के अनुवाद हुए, हमारे निर्गुण संतों ने तो अनुवाद किए ही। उन्होंने ना वेद का अनुवाद किया, ना कुरान का अनुवाद किया, बल्कि ऐसा काम किया कि जो आज करते तो निश्चित रूप से जेल चले जाते। वेद और कुरान दोनों की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, वेद और कतेब दोनों को मानने से इनकार कर दिया, और ये अकेले कबीर ने नहीं किया।
एक पूरा सिलसिला चलता है इस तरह का, जो वेद और कुरान दोनों की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। वर्नाक्युलराइजेशन, देश भाषाकरण। तुलसीदास संस्कृत जानते थे, लेकिन ये उनका चुनाव था, मजबूरी नहीं थी कि वो संस्कृत में नहीं बल्कि अवधी में लिखे। ज्ञानेश्वर संस्कृत के प्रकांड पंडित, लेकिन ज्ञानेश्वरी उन्होंने मराठी में लिखी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, इस पुस्तक की मैं आगे भी चर्चा करूंगा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अमुक्त माल्यदा। उसमें आंडाल और वेंकटेश्वर भगवान के विवाह का वर्णन है, लेकिन वो किताब अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण है। उस किताब के आरंभ में कृष्णदेव राय वजह बताते हैं कि मैं तेलुगु में क्यों लिख रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो संस्कृत में लिखना चाहता था। पंडित थे, वह राजा थे और पंडित थे। उन्होंने कहा कि मैं तो संस्कृत में ये पुस्तक रचना चाहता था। तो वेंकटेश भगवान ने सपने में आके मुझसे कहा कि संस्कृत के फेर में क्यों पड़े हो, क्या तुम नहीं जानते कि तेलुगु भारत की सबसे सुंदर भाषा है। ये पुस्तक तेलुगु में है, देश भाषा को वर्नाक्युलराइज। और अमुक्त माल्यदा केवल विवाह का वर्णन नहीं है, अमुक्त माल्यदा पॉलिटिकल ट्रेटाइज भी। हमारे भारत में एक समस्या ये पैदा हुई है, और इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा, कि जब हम भारत का गौरव खोजने निकलते हैं तो सीधे 7वीं 8वीं सदी से पीछे जाते हैं, उसके आगे रुकते ही। कहीं ना कहीं हम ये कह रहे होते हैं कि 10वीं सदी के बाद सिवाय पतन के कुछ नहीं, और जो भी ज्ञान विज्ञान है, पांडित्य, वो केवल संस्कृत में, उसके बाहर कुछ नहीं। अमुक्त माल्यदा कौटिल्य अर्थशास्त्र जितनी ना सही, उससे कुछ कम महत्वपूर्ण सही, लेकिन महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ट्रेटाइज है, और वो संस्कृत में नहीं रची, वो तेलुगु में रची। ये सब 15वीं 16वीं 17वीं सदी के दौर में इस देश में। सेकुलराइजेशन का बहुत आगे का स्टेज यहाँ हो रहा है, जहाँ केवल अनुवाद नहीं हो रहे, केवल संगठित चर्च को यहाँ आई ही नहीं। तो चर्च की सत्ता जैसी तो कोई चीज़ यहाँ थी नहीं। खिलाफत की भी उतनी परवाह मध्यकाल का मुसलमान नहीं करता था, आरंभिक आधुनिक काल का, जितना 20वीं सदी का मुसलमान करने लगा। खिलाफत भी कोई इतनी महत्वपूर्ण संस्था नहीं थी भारतीय मुसलमान के लिए। लेकिन जो यहाँ हुआ वो था पूरे के पूरे विमर्श का वर्नाक्युलराइजेशन। यूरोप के संदर्भ में कहा जाता है कि इन यूरोप द एनलाइटेंड थिंकर्स हैड टू फाइट अगेंस्ट गॉड। इस पर मैंने अपनी किताब में चुटकी ली है। बट इन इंडिया गॉड वॉज ऑन द साइड ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स। कबीर वॉज नॉट फाइटिंग गॉड, तुकाराम वॉज नॉट फोर्स्ड टू फाइट गॉड। और जिनको हम पारंपरिक भक्त माने, मान लीजिए तुलसीदास या अन्य लोग, ध्यान दें इस बात पर मित्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं, ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी गीता का अनुवाद नहीं, विष्णुदास का हिंदी में महाभारत या सरला दास का ओडिया में महाभारत अनुवाद नहीं। वे चले आ रहे आख्यान की पुनर्रचनाएं हैं, पुनर्कथन, अपनी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार। वाल्मीकि के राम उतने भगवान नहीं है जितने तुलसीदास के राम। सरला दास के यहाँ शकुनी जैसे खल पात्र को संवेदनशीलता के साथ समझने की कोशिश की गई कि शकुनी क्यों सारे कुरुवंश का नाश करने पर आमादा। सर्वथा नई कल्पना की है सरला दास ने, जो वेद व्यास के महाभारत में नहीं मिली। ये अनुवाद इनमें से कोई नहीं, ये सब पुनर्रचना है, जबकि वहां बाइबल के अनुवाद हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सबको आधुनिकता में शामिल क्यों ना करें। जब हम आधुनिकता की परिभाषा करते हैं, सुदीप्तो कविराज ने बहुत पहले एक निबंध लिखा था, बहुत दिलचस्प, मॉडर्निटी के बारे में। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि मॉडर्निटी की परिभाषा जो अभी तक की गई है वो पैरोकियल इंटरेस्ट से की गई, यानी यूरोप को ध्यान में रखते की गई। तो मैं भी उसी पैरोकियल इंटरेस्ट से इस सवाल को एक्सप्रोच करना चाहता हूँ कि क्या भारतीय अनुभव को ध्यान में रखते भी आधुनिकता की कोई परिभाषा हो सकती है। और ये केवल भारतीय की बात नहीं है, मिडिल ईस्ट,
चीन, जापान, लैटिन अमेरिका, तमाम सारी वो सभ्यताएं विभिन्न महाद्वीपों में फैली हुई। उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सीधे सीधे आरंभिक आधुनिकता ना भी कहें, उनकी कम से कम तुलना कर सकते। तो मेरा जो पहला सैद्धांतिक प्रस्ताव है वो ये है कि आधुनिकता की परिभाषा को व्यापक करने की, उसे पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है और उसको केवल यूरोप के ऐतिहासिक अनुभव तक सीमित रखने की बजाय उसको सही मायनों में एक विश्वव्यापी अनुभव से जुड़ी हुई परिभाषा बनाने की जरूरत है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस प्रसंग में सवाल उत्पन्न होता है व्यापार की भूमिका। कहा जाता है कि औद्योगिकरण, और कई बार क्या होता है कि जब चीज़ें कॉमन सेंस का हिस्सा बन जाएं तो बहुत नेक इरादों के साथ हम उन्हें इंटरनलाइज करते हैं। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कहा गया, महात्मा गांधी और तमाम लोगों ने कहा कि भारत ग्रामों का देश है। उस समय के बारे में ये बात सच थी, लेकिन क्या ऐतिहासिक रूप से भारत ग्रामों का ही देश था? क्या इंडियन इकोनॉमी सारे इतिहास में रूरल इकोनॉमी थी? आप अगर ऐतिहासिक रिसर्च देखें, सेंसस पर की गई रिसर्च अगर आप देखें, तो वास्तविकता ये है कि आरंभिक आधुनिक कालीन भारत में यूरोप की तुलना में कहीं अधिक नगरीकरण, 15% आबादी नगरीय आबादी, जो उस समय के यूरोप की नगरीय आबादी से अनुपात में अधिक थी। भारत में 2 लाख से 10 लाख तक की आबादी के अनेक नगर थे। यूरोप के बड़े से बड़े नगर की आबादी उस समय 1 लाख से अधिक थी, और ये सब यूरोपीय यात्रियों के विवरणों के आधार पर ही लिखा गया। कुछ विद्वानों ने इस पर टिप्पणी की कि असल में भारत में जिसको आप नगर कहते हैं वो नगर कभी था ही नहीं। वो तो दरबार के कारण और तीर्थ यात्रा के कारण लोग एक जगह बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे, वो नगर बन जाता, उसको नगर मान लिया जाता था। ये नगर था नहीं। शब्द के टेक्निकल अर्थ में दीज वर नॉट अर्बन सेटलमेंट्स। अब सवाल ये है कि दिल्ली और आगरा तो किसी धर्म के तीर्थ स्थल नहीं है, मथुरा है दोनों के बीच में, और मथुरा को बड़ा नगर कभी नहीं कहा गया। दिल्ली और आगरा को बड़ा नगर कहा गया, और राज सत्ता पहले आगरा में थी अकबर के ज़माने तक, फिर दिल्ली चली गई। आगरा तो गायब नहीं हो गया, ना उसकी आबादी कम हो गई। पहले दिल्ली में थी, उसके बाद अकबर उसे आगरा ले गए, तो उसकी वजह से ना दिल्ली की आबादी कम हुई, ना दिल्ली बर्बाद हुई। तो ऐसे भारत के तमाम नगर थे, और केवल उत्तर भारत में नहीं, विजयनगर, ढाका, मुर्शिदाबाद, आपका अपना नगर अजीमाबाद जो कहलाता था, ये सब तीर्थ यात्राओं के कारण बड़े नगर नहीं थे। ये उसी कारण बड़े नगर थे जिस कारण दुनिया भर में बड़े नगर होते हैं, अर्थात व्यापार के कारण। और बीच में इतिहास लेखन के क्रम में 20वीं सदी के आरंभ में थोड़ा ध्यान गया था इस बात पर कि आधुनिकता के विकास में व्यापारिक पूंजीवाद का क्या महत्व होता है। मान लिया गया था कि औद्योगिक पूंजीवाद के कारण ही आधुनिकता संभव हो सकती है, लेकिन उस समय ध्यान गया इस बात पर व्यापारिक पूंजीवाद का क्या महत्व है। व्यापारिक पूंजीवाद की थोड़ी गंभीरता से स्टडी करने की जरूरत है। फिर जैसा होता है लोगों का ध्यान हट गया उस बात से, या बहुत से कारण। पिछले दिनों यूरोप के इतिहास लेखन में व्यापारिक पूंजीवाद पर फिर से ध्यान दिया गया, और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब अभी कुछ दिनों पहले छपी है 2020 में। तरुण जी को अगर याद हो, जयरस बानाजी हमारे जेएनयू के स्कॉलर थे, सौभाग्य से वो मेरे निजी मित्रों में हैं। उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण किताब लिखी है 2020 में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, जिसमें उन्होंने यूरोप और मिडिल ईस्ट के इतिहास में और वहाँ आने वाले सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में कॉमर्शियल कैपिटलिज्म की भूमिका पर विचार किया। उसमें उन्होंने एक बात नोट की अन्य चीज़ों के साथ, जिस पर मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, और वो ये उस किताब का विषय या उस किताब का केंद्र भारत नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका में उन्होंने एक चीज़ नोट की है, सहज रूप से महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा है कि कबीर पूंजी की अवधारणा से परिचित, धन और पूंजी में अंतर होता है। तो जयरस बानाजी जो इकोनॉमिक हिस्टोरियन है,
उनका कमेंट ये है कि कबीर वॉज वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्शन ऑफ कैपिटल। उन्होंने उद्धृत की है पंक्ति, ये उनकी पंक्ति, उनके द्वारा उद्धृत पंक्ति है, कबीर पूंजी सहा की तू जिन खोजे पार, घरी खरी बेगूचनी होएगी लेखा देखी पार। इस पंक्ति को उद्धृत करके जयरस बानाजी कहते हैं कि इससे मालूम पड़ता है, और ऐसे अन्य संदर्भ हो सकते हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि उस वक्त में लोग पूंजी की धारणा से परिचित हैं, और ये अंतर बहुत जरूरी है। धन समाज में हमेशा रहा है, व्यापार समाज में हमेशा रहा है, लेकिन उसका एक इन्वेस्टमेंट और उसकी पूरी जो प्रक्रिया होती है जो धन को पूंजी में बदलती है, वो एक अलग चीज। और वहीं से हम व्यापारिक पूंजीवाद की बात, व्यापार और व्यापारिक पूंजीवाद ये दो अलग अलग पद इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए हम मिसाल के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापारिक पूंजीवाद नहीं कहते। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत व्यापार है, लेकिन हम उसे व्यापारिक पूंजीवाद नहीं कहते, हम केवल व्यापार कहते हैं। यूरोप के इतिहास में भी हम 14वीं-15वीं सदी के पहले व्यापारिक पूंजीवाद की बात नहीं करते। और इस क्रम में डॉक्टर रामविलास शर्मा, हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण विचारक और आलोचक, उनकी 1960 में प्रकाशित एक पुस्तक है भाषा और समाज, और मैं पुरजोर सिफारिश करता हूँ कि भारतीय इतिहास और समाज के गठन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, केवल हिंदी के विद्यार्थी को नहीं, किसी भी व्यक्ति को वो पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। 1960 में प्रकाशित भाषा और समाज, और उस पुस्तक का एक उद्धरण मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ। रामविलास शर्मा व्यापारिक पूंजीवाद की प्रक्रिया और उसकी परिणति, किस तरह व्यापार के जरिए पूंजी का उदय होता है और उसकी परिणतियां जो होती हैं, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। केवल आर्थिक स्तर पर, आगे की बात यहाँ नहीं है, लेकिन वो जो कह रहे हैं, सामंती व्यवस्था में खाने खर्चने के बाद जो माल बचता है वो बेच लिया जाता है, किंतु व्यापार के प्रसार के साथ ही आवश्यकता उत्पन्न होती है कि खरीद फरोख्त के लिए माल विशेष रूप से तैयार किया जाए। बचे हुए फालतू माल से काम नहीं चलता। कारीगर जो माल तैयार करता है उसका उपयोग मूल्य कम हो जाता है, विनिमय मूल्य बढ़ जाता है, यूटिलिटी वैल्यू घट जाती है, एक्सचेंज वैल्यू बढ़ जाती है। कुछ विशेष प्रदेशों और नगरों में खास चीज़ों का उत्पादन बढ़ जाता है, अन्य प्रदेश और नगर अपने यहाँ वो चीज़ें तैयार ना करके अन्य केंद्रों से वो चीज़ें मंगाते हैं। व्यापार के कारण वस्तुएं क्रय विक्रय की वस्तु बनती है, कमोडिटी बनती है व्यापार के कारण। और जब व्यापार बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस बात को यूँ समझें, जब व्यापार एक सीमा के पार चला जाता है तो मानवीय संबंध भी कमोडिटी बनने चलते हैं, वो भी वस्तु बन जाती है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, आज औद्योगिक समाजों में स्थिति आ चुकी है कि आप बेटा और बेटी किराए पे ले सकते हैं। किराए पर लेने का अर्थ ये कि आप 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, आपका अपना बेटा बेटी कहीं सेटल्ड है, उनके लिए उनके पास आपके लिए फुर्सत नहीं है, तो ऐसी एजेंसीज खुल गई हैं जहाँ आप कुछ पैसे देंगे और एक 18-20 साल की लड़की आके आपसे उसी तरह बात करेगी जैसे आपकी पोती को करनी चाहिए, उसी तरह आपको प्रेम करेगी, दादाजी दादाजी कह के बात करेगी, कुछ खाने पीने को दे देगी, दिन में 3 घंटे आपके साथ बिताएगी, एंड यू विल पे फॉर दिस, क्योंकि आपको एक पोती का स्नेह चाहिए। स्नेह हैज बीन टर्न इनटू कमोडिटी इन द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो उसी की ओर यहाँ संकेत कर रहे हैं कि वस्तुएं कमोडिटी में बदल, आगे चल के भावनाएं कमोडिटी में बदल जाती हैं, वो अलग बात है। तो हमारे एक मित्र ने हमें एक चुटकुला सुनाया था, चूँकि मेरे परिचय में यूपीएससी का जिक्र भी किया गया, तो मुझे मेरे एक मित्र ने चुटकुला के अपने हिसाब से संस्करण सुनाया था, भगवान जाने चुटकुला है या वो है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनने को मिला। मेरे एक मित्र की प्रेमिका ने उससे कहा कि आई लव यू सो मच बट आई मस्ट मैरी द IAS माई फादर हैज चोजन फॉर मी। सो लव एक चीज है, मैरिज एक चीज। इट्स अ क्लियर कट बाइफर्केशन इन द इमोशन एंड इट्स अ वेरी रैशनल थिंकिंग। प्रेम के लिए मरने उड़ने के जमाने गए, नाउ प्रेम इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो वो बहुत बात की बात है, अभी हम 16वीं सदी की बात करते हैं। तो इस तरह उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में व्यापार उसे प्रभावित करता है, पुरानी पद्धति बदलकर नई पद्धति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, और सामंती व्यवस्था में व्यापार का विकास पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के लिए जमीन तैयार करता है।
ये रामविलास जी का उद्धरण मैंने पढ़ा है, उनकी 1960 वाली पुस्तक भाषा और समाज से। जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत में नगरीकरण, नगरों की आबादी, यानी जो आधुनिक समाज के लक्षण माने जाते हैं, वो पर्याप्त बहुत, और इसलिए ये मानना, मैं परंपरा और आधुनिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय समाज 16वीं सदी के बाद से मध्यकालीन था या आरंभिक आधुनिक, सवाल इस पर। और मेरी धारणा ये है कि वो आरंभिक आधुनिक समाज था, क्योंकि उसमें वो सारे लक्षण मौजूद हैं जो आप यूरोप की आरंभिक आधुनिकता में खोजते हैं। और ये मैं कोई बहुत मौलिक बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कहने वाला व्यक्ति पहला नहीं। इस पर इतिहासकारों के बीच में बहुत दिनों से बहस चल रही है, पिछले 50-60 साल से। और संजय सुब्रमण्यम नाम के एक इतिहासकार ने इस पर बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने सही पॉइंट आउट किया है, संजय सुब्रमण्यम ने, कि मॉडर्निटी कोई वायरस नहीं है कि यूरोप में पैदा हुआ और दुनिया भर में फैल गया। मॉडर्निटी एक ग्लोबल फिनोमेना है, वो विश्व भर में फैल रही थी अपने अपने। सभ्यताएं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि सभ्यताएं और संस्कृतियां केवल युद्ध के कारण एक दूसरे के संपर्क में आती। युद्ध बहुत बात की चीज है, पहले सभ्यताएं और संस्कृतियां व्यापार के कारण संपर्क में। ब्रिटिश राज भारत में कायम होने के पहले से भारत का यूरोप के साथ और ब्रिटेन के साथ व्यापार था। भारत में तुर्क या मुगल सल्तनत स्थापित होने के बहुत पहले से अरब और दूसरे देशों के मुस्लिम सौदागरों के साथ भारत का संपर्क था। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो व्यापार के कारण होने वाले संपर्क होते हैं, इनकी वजह से जो परिवर्तन आते हैं, संजय सुब्रमण्यम ने सही पॉइंट आउट किया कि मॉडर्निटी कोई वायरस नहीं है कि किसी एक देश में पैदा हुआ फिर दूसरी जगह फैलता चला गया। इट्स अ ग्लोबल प्रोसेस, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। और इसलिए आधुनिकता को समझने के लिए सारे विश्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए अगर हम आधुनिकता की बात करें तो हम आधुनिकता की बेहतर समझ तक पहुंचेंगे, उसकी समस्याओं की बेहतर समझ तक पहुंचेंगे, उसकी संभावनाओं की बेहतर समझ तक पहुंचेंगे। एक और बात ध्यान में रखने की जरूरत है जब हम विनियोगीकरण की बात करेंगे। रेमंड स्वाब नाम के एक फ्रेंच इतिहासकार और विचारक हुए हैं। 1950 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द ओरिएंटल रेनेसांस, यूरोप्स रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ईस्ट। उनकी उसमें स्थापना ये थी कि यूरोप में रेनेसां जब 15वीं सदी में हुआ तो वह अधूरा था। वो रेनेसां पूरा हुआ जाके 18वीं सदी में, जब यूरोप के इंटेलेक्चुअलों का गहरा संपर्क भारत और चीन के साथ। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, 1950 में फ्रेंच में छपी थी, अंग्रेजी अनुवाद उसका 1984 में। और अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका लिखते हुए एडवर्ड सईद ने लिखा है कि इस पुस्तक का प्रकाशन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री की एक मेजर इवेंट, क्योंकि यूरोप के द्वारा दुनिया को देखने का और यूरोप के द्वारा अपने आप को देखने का, दोनों तरीके रेमंड स्वाब ने बदले। उन्होंने यूरोप को याद दिलाया कि आपका रेनेसांस 15वीं-16वीं सदी तक सीमित नहीं है, वो 18वीं सदी तक आता है। आपके रेनेसांस में केवल ग्रीक और अरब परंपराओं का योगदान नहीं है, उसमें भारतीय और चीनी परंपरा का। वॉल्टेयर यूरोप के राजाओं की धार्मिक असहिष्णुता की निंदा करते हुए चीन और भारत को याद करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में और चीन में काफी धार्मिक सहिष्णुता है बनिस्बत यूरोप। आप जानते हैं वॉल्टेयर का सब। तो ये जो डायनेमिज्म है समाज का, संस्कृति का, और रेमंड साहब ने जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत किया वो ये, और मैं वो बात पढ़ना चाहूंगा। असल में क्या होता है, आजकल एक चलन चला है जिसमें विशिष्टता पर बहुत जोर है, पर्टिकुलर, यूनिवर्सल, हर चीज संदिग्ध हो गई, हर चीज विशिष्ट है, समाज के हिसाब से, राष्ट्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, रेस के हिसाब से। यूनिवर्सल कुछ नहीं। यूनिवर्सलिटी इज अ मिथ क्रिएटेड बाय व्हाइट मैन एटसेट्रा एटसेट्रा। रेमंड साहब ने बहुत मार्के की बात की और संकेत की, और वहां वो सही सूत्र है इस यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के संबंध को समझने का।
उन्होंने कहा कि भारत के सामने भी वैसी ही समस्याएं रही हैं जैसी हमारे सामने, लेकिन उन्हें समझने और सुलझाने के तरीके जुटा थे। समस्याएं वही हैं। एक बहुत मोटी मिसाल लीजिए, आजकल बड़ा प्रचलित है ये सब डाइवर्सिटी, धार्मिक डाइवर्सिटी। यूरोप में आज चूंकि बहुत सारे गैर ईसाई लोग जाकर रहने लगे हैं यूरोप और अमेरिका में विभिन्न कारणों से, तो समाज में वहाँ कितनी बेचैनी है। आप एकेडमिक जर्नल्स पढ़िए, सोशल मीडिया पढ़िए, अखबार पढ़िए, डाइवर्सिटी को लेकर यूरोप और अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोप करें। शुद्ध रूप से ईसाई बन जाएं या इस्लाम को, हिंदुइज्म को, बौद्ध को क्या जगह दें, कैसे जगह दें, कितना बर्दाश्त करें, कितना ना करें, टॉलरेंस। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी जीवन का एक तत्व। आप डाइवर्सिटी से कितना भी चढ़े, आप डाइवर्सिटी और सेकुलर जैसे शब्दों से कितनी भी असुविधा महसूस करें, लेकिन तत्व। और इसका संबंध केवल धर्म से नहीं है भाई। भारत में डाइवर्सिटी कण कण पर होने वाला अनुभव है, अगर आप अपनी आंखें खोल के चलें। हमारे मित्र हैं राजकुमार जी BHU में प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात लिखी है अपने एक लेख में कि आप दिल्ली से ट्रेन में बैठिए और पटना तक आइए। आप दिल्ली से चल रहे हैं तो खड़ी बोली या पंजाबी इलाके से चल रहे हैं, पटना आप पहुँचे तो भोजपुरी और मगही इलाके तक पहुँचे, और सारी बातचीत आपको समझ में आती जा रही है। कहीं आप बोल भी पा रहे हैं, कहीं आप नहीं भी बोल पा रहे, लेकिन ये ट्रांजिशन कब हो गया आपको पता तक नहीं चलेगा। कब आप खड़ी बोली से ब्रज में प्रवेश कर गए, ब्रज से अवधी में प्रवेश कर गए, अवधी से काष्ठा में कर गए, और काष्ठा से भोजपुरी में कर गए, आपको पता तक नहीं चलेगा। दिस इज योर लिव्ड रियलिटी। इसीलिए रेमंड स्वाब ने कहा, एक दूसरा और प्रत्यक्ष उदाहरण ने इतिहास से लिया। 16वीं सदी के यूरोप में आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी ईसाई और मुसलमान, और ईसाई और हिंदू तो छोड़ दीजिए, अतः पता ही नहीं था इन लोगों का उस समय में। आप कल्पना कर सकते हैं कि फ्रांस के कैथोलिक बादशाह का कोई मंत्री प्रोटेस्टेंट हो, या इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट राजा का कोई मंत्री कैथोलिक हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक साथ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होने का दावा कर सके? अकल्पनीय था यूरोप के लिए। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि यूरोपियन जब भारत में आए तो उनके सामने समस्या ये थी कि वो दिस और दैट के आदमी, या तो आप ये हो सकते हैं या वो। भारत आके उन्हें एक ऐसी विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें प्रधानता दिस एंड दैट, ये भी और वो भी। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? कोई मुसलमान था। अकबर का प्रधान सेनापति कौन था? कोई मुसलमान था। अकबर का निजी मित्र कॉन्फिडेंट कौन था? कोई मुसलमान था। और अकबर बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, ऐसे उदाहरण आप दर्जनों पा सकते हैं। अकबर जैसे प्रसिद्ध राजाओं के अलावा छोटे मोटे राजाओं के यहाँ भी आपको ऐसे उदाहरण। मैं खुद अजमेर के पास बाबा बादाम शाह की दरगाह में होके आया हूँ। उस दरगाह के जो चीफ खादिम में, मुख्य खादिम में, वो एक मिश्रा जी, बनारस से गए हुए, वहां बच गए मिश्रा, उनका परिवार उस दरगाह का चीफ खादिम। तो यहाँ दिस और दैट नहीं था, यहाँ दिस एंड दैट। इसीलिए रेमंड स्वाब का ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के सामने समस्याएं वही थी जो हमारे सामने रही, उन्हें सुलझाने के तरीके थे। और इसलिए जब हम विउपनिवेशीकरण की बात करते हैं तो हमें इस सूत्र को ध्यान में रखना होगा। आधुनिकता की तरह चूंकि औपनिवेशीकरण भी एक विश्वव्यापी परिघटना, यूरोप ने दुनिया के हर महाद्वीप को, हर सभ्यता को, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे मिसाल के तौर पर चीन कभी कभी सीधे उपनिवेश नहीं था, जापान कभी सीधे उपनिवेश नहीं था, कुछ अपवादों को छोड़कर तमाम सभ्यताएं और तमाम महाद्वीप यूरोप के उपनिवेश बने। तो जब हम विउपनिवेशीकरण की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तरफ ये विश्वव्यापी परिघटना है, दूसरी तरफ इसकी हर समाज के संदर्भ में अपनी विशिष्टता है। और यहाँ मैं फिर एक बार सुदीप्तो कविराज को याद करना चाहता हूँ। 2021 में कैरोस नाम की पत्रिका में सुदीप्तो कविराज का एक रिव्यू आर्टिकल छपा। उन्हें आदित्य निगम की पुस्तक का रिव्यू करते हुए लेख लिखा है, डीकोलोनाइजेशन, क्या मतलब है डीकोलोनाइजेशन। उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आउट की हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए।
पहला तो उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज स्थापित होने के बाद एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय समाज का ब्रिटिश राज के संबंध केवल रेजिस्टेंस का नहीं, वो अनुगमन और प्रतिरोध का संबंध, एम्यूलेशन एंड रेजिस्टेंस। अनुगमन भी हुआ और प्रतिरोध भी हुआ। आपका पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम ब्रिटिश राज की ही है, और इसी यूनिवर्सिटी सिस्टम ने ब्रिटिश राज के सबसे मुखर विरोधी उत्पन्न किए, सबसे मुखर आलोचक उत्पन्न किए। आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिश राज की ही है, और केवल यही नहीं, थॉट पैटर्न्स में, तमाम चीजों में। उन्होंने एक बहुत मजेदार उदाहरण दिया कि भारतीय, उनकी एक बात उनका मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा विचार कीजिए। उन्होंने कहा कि भारत के संदर्भ में दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये कि समस्या ये हुई है, या समस्या नहीं, ये तथ्य है कि भारत की एकेडमिक कल्चर कोलोनाइज हुई है, भारतीय कल्चर कोलोनाइज नहीं हुई। ये डिस्टिंक्शन आज के जमाने में बेहद महत्वपूर्ण है। इन इंडिया एकेडमिक कल्चर हैज बीन कोलोनाइज, नॉट द इंडियन कल्चर। आपकी आम संस्कृति जो है, आपकी जन संस्कृति जिसके हिस्से आप भी हैं, वो कोलोनाइज नहीं। बहुत मजेदार उदाहरण सुदीप्तो ने दिया है। आप सबने वो गाना सुना होगा, मेरी पीढ़ी के बाद के लोगों ने भी सुना होगा, यूट्यूब की मेहरबानी से। सदाबहार सुमधुर गीत है, इतना ना मुझसे प्यार बढ़ा, सुना या नहीं? इतना ना मुझसे प्यार बढ़ा में एक बादल आवारा, सलील चौधरी द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। मैं उसे सुर में गाने की कोशिश नहीं करूंगा, वरना आप लोगों का धैर्य जवाब दे जाए। लेकिन वो गाना जो है, मोजार्ट एक यूरोपियन संगीतकार थे बहुत प्रसिद्ध, उनकी 40वीं सिम्फनी से उठाया गया। सीधे सीधे इतना न मुझसे प्यार, वो मोजार्ट की सिम्फनी पियानो पर इसी तरह सुनी। सुदीप्तो कविराज ने कहा कि इस गाने को भारत का आम आदमी एंजॉय करता रहा है, करता रहेगा, मोजार्ट के नाम की स्पेलिंग जानी। क्या इसे हम उपनिवेशीकरण कहें? उन्होंने सवाल उठाया। एक और उदाहरण आप अपने उससे याद कीजिए। आप सब लोग जानते हैं क्रिकेट भारत में, लोग कहते हैं कि भारत में असल में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हर आदमी का डेफिनेट ओपिनियन है, जानकारी हो या ना हो। 3 चीज़ों पर भारत के हर आदमी का डेफिनेट ओपिनियन, पॉलिटिक्स, सिनेमा और क्रिकेट। बैट पकड़ना नहीं आता है, लेकिन वो बता सकते हैं कि सचिन ने उस पारी में क्या गड़बड़ की, ठीक से बैटिंग क्यों नहीं करा। एवरी इंडियन हैज अ डेफिनेट ओपिनियन ऑन फिल्म्स, पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट। मुख्यमंत्री जी क्या गड़बड़ कर रहे हैं, आप चाय की दुकान पर जाइए, वो आदमी बहुत तफसील से आपको बताए कि कहाँ गड़बड़ कर गए। लेकिन है हिंदुस्तानी स्वभाव का हिस्सा है। एनीवे, तो क्रिकेट भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय थी। अपने उद्गम स्थल इंग्लैंड में क्रिकेट ठेठ एलीट खेल। क्रिकेट इंग्लैंड का लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल या सॉकर। इंग्लैंड में जेंटलमैन स्पोर्ट। आप सोचिए कोई खेल ऐसा हो सकता है जिसमें लोग सफेद फलानेल के सूट पहन के खेलने जाते, और जिसमें नियम इतने कड़े हों कि गेंद यहाँ से वहाँ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, और थोड़ा बैट ऐसे हो गया तो नो बॉल हो जाएगी, वाइड बॉल हो जाएगी, भगवान जाने क्या क्या हो जाएगा, मैं कुछ नहीं जानता क्रिकेट के बारे में। बट इट्स अ वेरी माइन्यूट जेंटलमैनली गेम। और भारत में आप कहें कि क्रिकेट खेलने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास सफ़ेद कपड़े हों, तो जो लड़का बचपन में निक्कर पहन के किसी दीवार पे 3 विकेट बना के क्रिकेट खेलता रहा है, वो कहेगा आपके लिए होंगे जरूरी, मेरा काम इसी से करना है। इसको क्या कहेंगे? और इसी को आगे बढ़ाएं। फिल्म लगान आपको याद होगी। लगान फिल्म में क्रिकेट के खेल को जिस तरह वो देहातियों की टीम अपनाती है और उसमें सिद्धता हासिल करती है, ये उदाहरण सुदीप्तो कविराज ने नहीं दिया, ये मैं दे रहा हूँ। ये उस भारतीय जीनियस का प्रमाण है जिसके चलते आप बाहरी चीज़ों को न केवल इंटरनलाइज करते हैं, बल्कि उन्हें अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। उस क्रिकेट के खेल में और साहबों के खेल में वो किसानों की टीम उन साहबों को हरा दी, बिकॉज दे लर्न। कृष्णा मेनन बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे और बहुत लंबे भाषण देते थे। तो एक बार यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इंग्लैंड के विदेश मंत्री ने उन पर तंज किया
मिस्टर मेनन और जो भी हुआ, आप अंग्रेजी बहुत बढ़िया था। तो मेनन तंज किया उन्होंने, तो मेनन साहब ने जवाब दिया, यू आर राइट, बिकॉज यू हैव जस्ट पिक्ड इट अप, आई हैव लर्न द हार्ड वे। आपको तो पढ़ी हुई मिल गई थी माँ के दूध के साथ, इसलिए आपको तो सीखनी नहीं पड़ी। मैंने अंग्रेजी सीखी है, इसलिए मैं आपसे बेहतर अंग्रेजी बोलता हूँ। यस, इट्स राइट, यू जस्ट पिक्ड इट अप, आई लर्न इट द हार्ड वे। तो लगान के वो देहाती क्रिकेट, दे लर्न द क्रिकेट वेरी वेरी हार्ड। फॉर देम दैट पर्टिकुलर मैच बिकेम द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड देयरफॉर दे लर्नड ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ द गेम। सुदीप्तो कविराज इतना ना मुझसे प्यार बढ़ा गाने के माध्यम से जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से ये बात आप सामने आती है कि पॉपुलर कल्चर कोलोनाइज नहीं हुई, वो जानती है कि विदेशी प्रभाव को किस तरह आत्मसात। एकेडमिक कल्चर कोलोनाइज, और उसका कारण उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की एकेडमिक कल्चर में दो समस्याएं हुई हैं। एक तो ये कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस की पद्धति और स्वभाव में अंतर को नहीं समझा। मान लिया गया कि नेचुरल साइंस की तरह सोशल साइंस के भी विषय और अप्रोच और सवाल यूनिवर्सल। इसलिए ऐसी कैटेगरी जो उस यूनिवर्सलिटी में नहीं समाती थी, उनको समझने में भारत की सोशल साइंस असफल रही, जिसका सबसे प्रज्वलित उदाहरण है कास्ट। कास्ट को समझने में, कास्ट की संरचना को समझने में, उसके ऐतिहासिक विकास को समझने में हम लोग कुल मिलाकर असफल ही रहे। और ऐसे कई उदाहरण होते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हिंदुस्तान की जो मैरिज की इंस्टीट्यूशन है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसी दुनिया के और समाज। उनको ठीक उस तरह से नहीं समझा जा सकता सोशियोलॉजी में जैसे अन्य समाजों की सोशियोलॉजी को समझा जा सकता। और इसी से जुड़ी हुई वो समस्या उत्पन्न हुई सुदीप्तो कविराज के अनुसार तीसरी, कि यूरोप के एलीट ने मॉडर्न होने के बाद सारे समाज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। भारत के एलीट ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ही समाज का ट्रांसफॉर्मेशन माना। इसी को तरुण जी मैंने अपनी पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की में संवेदना विच्छेद का एलियट से मुहावरा उड़ा दिया। भारतीय बौद्धिक में एक गहरा संवेदना विच्छेद है, जिसके परिणाम आप देख सकते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने डिस्कशंस में, ड्राइंग रूम में उसमें करते हैं, और जब कोई किसी तरह का जनज्वार उत्पन्न होता है, चाहे वो जाति के सवाल पर हो, धर्म के सवाल पर हो, तो हिंदुस्तान का लिबरल सेकुलर इंटेलेक्चुअल हकमका जाता है कि कैसे भी, क्योंकि उसके पास वो जुबान ही नहीं, उसके पास वो कैटेगरीज नहीं। उसने ना तो जनता को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है और ना जनता के साथ अपने संवाद के जरिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। जिसका एक और उदाहरण पुनः इतिहास से हमारे यहाँ एक चलन हो गया है, और यहाँ मैं अपनी उस बात पे आऊँगा व्युपनिवेशीकरण के सवाल पर, कि व्युपनिवेशीकरण का तात्पर्य क्या है या क्या होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों के लिए व्युपनिवेशीकरण का मतलब हो गया है सीधे प्राचीन भारत में बात। सारे के सारे आरंभिक आधुनिक कालीन भारत को या मध्यकालीन भारत को जड़ता का, अंधकार का, अत्याचार का युग कहकर डिसमिस करते हैं। ये चलन आजकल बहुत है, खास तरह की राजनीति का ये बड़ा लोकप्रिय चलन। लेकिन दुर्भाग्य से ये चलन हमारी एकेडमिक संस्कृति में बहुत नेक दिल इरादों के साथ बदमूल हुआ। अत्यंत आदरणीय मेरे और तरुण जी के भी एक तरह से दादा गुरु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने एक पद का प्रयोग किया है, जब्दी हुई मनोवृत्ति, स्टैग्नेंट मेंटालिटी, जैसे मध्यकाल कहा जाता है, उसकी जब्दी हुई मनोवृत्ति। एक और पद का प्रयोग किया है कि कोई मौलिक चिंतन हुआ नहीं हुआ, ये टीका युग में बदल कर पुरानी किताबों पर केवल टीकाएं लिखी गई। मैं सचमुच चकित होता हूँ तरुण जी, आचार्य जी के दोनों वाक्य पढ़ के। वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत में मौलिकता का अभिप्राय ही कुछ और। शंकराचार्य ने अपना कह के मौलिक संभव से कुछ नहीं लिखा। जिनके कारण हम शंकराचार्य को महान दार्शनिक और विचारक मानते हैं, वो सब उनके भाष्य, चाहे वो वेदांत सूत्रों पर हो, चाहे वो उपनिषदों पर हो, चाहे वो भगवद गीता पर। भारतीय परंपरा में किसी के आचार्य कहलाने की शर्त ये नहीं होती थी कि उसने मौलिक पीएचडी की है या नहीं। शर्त ये होती थी कि प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा है या नहीं, या कम से कम एक पर।
यानी उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इसको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो टीका लिखना ऐसा कोई बुरा काम है नहीं। टीका के जरिए मूल कथन की व्याख्या आप कैसी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। और मैं उन विस्तारों में नहीं जाना चाहता, मेरी दोनों पुस्तकों में वो सुलभ है, आप देखें या अन्यत्र भी। एक किताब का मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, आशुतोष दयाल माथुर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में संस्कृत के अध्यापक हैं। अद्भुत किताब है उनकी, मीडिएवल संस्कृत स्कॉलरशिप के बारे में। उसमें आप देखें कि मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे पुराने धर्म ग्रंथों पर टीका करते हुए या धर्मशास्त्रों पर टीका करते हुए इस तथाकथित मध्यकाल के विचारक कितनी क्रांतिकारी स्थापना है। मनु ने कहा कि ब्राह्मण अवध्य है, हरदत्त ने ब्राह्मण की अवध्यता की शर्तें ऐसी गिना दी कि वैसा ब्राह्मण खोजे नहीं मिले, अवध्यता धरी की धरी रही। ये टीका थी। हरदत्त का काम कोई मौलिक कोट अनकोट मौलिक काम नहीं। वीर मित्रोदय 17वीं 18वीं सदी में ओरछा के राजा के आश्रित जो कवि थे, मिश्र कवि, उनका ग्रंथ है वीर मित्रोदय। धर्म यानी धर्मशास्त्र और राजशास्त्र दोनों पर गहरा चिंतन। अमुक्त माल्यदा का मैंने जिक्र किया। अमुक्त माल्यदा का महत्व इस बात में है, न केवल इसमें कि वो तेलुगु में रचा गया ग्रंथ है, बल्कि इसमें भी कि उसमें राजा के दायित्व, राजा की समस्याएं, राजा की चुनौतियां, इन पर कोई डिसइंटरेस्टेड फिलोसफर विचार नहीं कर रहा है, कोई प्रोफेसर विचार नहीं कर रहा है। एक बाकायदा जो व्यक्ति राजा है वो विचार, इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल मैन। इट्स लाइक सम प्राइम मिनिस्टर और सम चीफ मिनिस्टर राइटिंग अबाउट द जॉब्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ चीफ। तेलुगु में रखी गई है, 16वीं सदी की। तो ये हम कैसे मान लें और क्यों मान लें कि ये समय हमारे लिए जबती हुई मनोवृत्ति का समय है? क्या आधार है ऐसा कहने का? बौद्धिक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री जिसको कहते हैं। भारत में उपनिवेशवाद के अनेक नुकसानों की चर्चा की जा सकती है, की जाती है। आर्थिक शोषण की बहुत बात होती है और तमाम सारे शोषण की बात होती है। मैं ये मानता हूँ मित्रों कि भारत में औपनिवेशिक ज्ञानकांड, औपनिवेशीकरण का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो था बौद्धिक आयास की निरंतरता का नकार। एक ऐसी समझ बनाई गई कि 11वीं 12वीं सदी के भारत का इंटेलेक्चुअल इतिहास, भारत की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री केवल पतन की हिस्ट्री है। इस पिछले 700-800 साल में कोई निरंतरता नहीं रही, कोई बौद्धिक विकास नहीं हुआ, और इसलिए अब आप अतीत की खोज कीजिए। नतीजा ये निकला कि हमारे जो कॉलोनियल सिस्टम से निकले हुए इंटेलेक्चुअल थे, जब वो भारतीय गौरव की खोज करने चलते हैं, भारतीय परंपरा की खोज करने चलते हैं, तो सीधे पूर्व सल्तनत काल में जाते हैं, 8वीं सदी के भी पहले जाते हैं। उन्हें चाणक्य का अर्थशास्त्र याद आता है, उन्हें महाभारत की विदुर नीति याद आती है, उन्हें कृष्णदेव राय का अर्ध अमुक्त माल्यदा कहीं न जाए। और ये कहते हुए मैं ना महाभारत की अवज्ञा कर रहा हूँ और ना कौटिल्य अर्थशास्त्र, सब महत्वपूर्ण ग्रंथ। पॉइंट इज कि बौद्धिक निरंतरता बनी रही या खत्म। हमें ये विश्वास दिलाया गया और हमने कर लिया, हमारे पूर्वजों ने, कि वो बौद्धिक निरंतरता समाप्त हो। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान, संवेदनशील विद्वान ने ये मान लिया कि ये समय जब्ती हुई मनोवृत्ति का, ये जब्ती हुई मनोवृत्ति का समय नहीं, संस्कृत में भी नहीं था। और अगर संस्कृत में मान भी लिया जाए तो जिस काल में आपके पास बासवा, तुकाराम, कबीर और लालदेद हैं, वो किस लिहाज से जब्ती हुई मनोवृत्ति का समय? जिस काल में आपके पास शंकर देव और तुलसीदास और मीराबाई हैं, वो किस लिहाज से जब्ती हुई मनोवृत्ति का समय? जिस काल में आपके यहाँ वल्लभाचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं, वो किस तरह जब्ती हुई मनोवृत्ति का समय? बौद्धिक आयास की निरंतरता का नकार, जिसका परिणाम ये हुआ कि आगे चल के आप देखेंगे कि जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया था वो अपनी खोज करने लगा अहले हिजाज के उस इतिहास में जो गंगा के दहाने में आके डूब गया। हाल ही की प्रसिद्ध पंक्ति अहले हिजाज का, वो आके गंगा के दहाने में डूबा, तो वो खोज वहाँ होने लगी। और इधर वो खोज वहाँ होने लगी
उस अतीत में जो इस्लामी प्रभाव से सर्वथा शुद्ध। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही एक पंक्ति अगर उद्धृत करूं तो संस्कृति में शुद्धता केवल बाद की बात है, संस्कृति में जीवित वही रहता है जो अशुद्ध। संस्कृति अपनाए बिना, मिश्रित हुए बिना विकसित नहीं। एनीवे, तो जो मैं कह रहा था कि बौद्धिक आयास की निरंतरता का नकार H.H. विल्सन, जिन्होंने 1928 में महत्वपूर्ण काम किया भारतीय साहित्य और परंपरा की खोज के सिलसिले में, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और ये सब बड़ा महत्वपूर्ण काम है उनका एक उदाहरण मैं पढ़ना चाहता हूँ। इट इज एन assertion that scarcely requires proof that the Hindu population of these extensive realms can be understood only through the medium of Sanskrit language. Only through the medium of Sanskrit language. It alone furnishes us with the master spring of all the actions and passions, their prejudices and errors, and enables us to appreciate their vices or their worth. आपका सारे का सारा भक्ति साहित्य, जैसे हम लोग भारतीय भाषाओं के इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, वो एक पैराग्राफ में खारिज है। मैकाले की मिनट्स की बहुत चर्चा होती है और बहुत उसको कोसा जाता है। मैकाले की मिनट से ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा सीधे शब्दों में कहा जाए तो स्टैंडलेस ये स्टेट जो कह रहा है कि संस्कृत के अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है हिंदुओं को समझने, ना बांग्ला जानने की जरूरत है, ना अवधी जानने की जरूरत है, ना भोजपुरी जानने की जरूरत है, ना मराठी जानने की जरूरत है। देश भाषाओं की ये अवज्ञा, देश भाषाओं का ये नकार, मैं ये मानता हूं कि यह औपनिवेशिक ज्ञान कांड के द्वारा किया गया सबसे बड़ा नुकसान। इसलिए अगर विउपनिवेशीकरण की शुरुआत होनी है तो मेरी मान्यता यह है कि देश भाषाओं के साथ गंभीरतापूर्वक, सम्मानपूर्वक, अंधश्रद्धापूर्वक नहीं। मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ। मैंने कबीर पर काम किया है, लोग मुझे कबीर का प्रशंसक कहते हैं, मैं हूँ भी। गांधी जी का भी प्रशंसक हूँ, नेहरू का भी प्रशंसक हूँ। अंधभक्त मैं किसी का नहीं। परमपिता परमात्मा भी मिल जाए तो अंधभक्त तो मैं उनका भी हूँ। इसलिए क्रिटिकल डायलॉग विद योर एंटायर ट्रेडिशन। और अंत में एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अनुमति है? हाँ, अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हम सब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महत्व से और उनके काम से परिचित हैं। समाज सुधार में, बाल विवाह दूर करने में, विधवा विवाह के लिए संघर्ष करने में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने जब बाल विवाह के दोष नाम की पहली पुस्तक अपनी लिखी, समाज सुधार की, तो उसमें किसी शास्त्र का, किसी स्मृति का कोई सहारा नहीं लिया गया था। तो सहज बोध और कॉमन सेंस और विवेक को अपील करती हुई लिखी गई किताब कि बाल विवाह होने से स्वास्थ्य बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होते हैं आदि। 5 साल बाद जब उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी विधवा विवाह के समर्थन में, तो उसमें उन्होंने याज्ञवल्क्य और पराशर के आधार पर आए। संभवतः वो ये समझे और ठीक ही समझे कि अगर समाज में व्यापक स्वीकृति पानी है तो पारंपरिक धर्मशास्त्रों के सहारे के बिना नहीं पाई। इसलिए उन्होंने अपने ढंग से उन सब चीज़ों की नए सिरे से व्याख्या की। जन गोपाल, जिन पर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, कर चुका, प्रकाशित होगा जल्दी ही जन गोपाल पर काम। जन गोपाल संत दादू के प्रिय शिष्य और उनके जीवनी का। दादू जी का निधन 1603 में हुआ। जन गोपाल ने उनकी जीवनी दादू जन्म लीला के नाम से 1620 में, और वो जीवनी इस लिहाज से विलक्षण है कि अन्य परिचयों या संतों की जीवन कथाओं से विपरीत इसमें काफ़ी रैशनल एलिमेंट, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्ट उल्लेख, संसम्मत का उल्लेख है जो किसी परिचय में आपको नहीं मिलेगा। कबीरदास की किसी परिचय में या तुलसीदास के किसी जीवन वृत्त में आपको संसम्मत का उल्लेख है। स्वयं तुलसीदास के यहाँ मिलता है, थोड़ा बहुत उनके बारे में लिखे गए किसी उसमें नहीं। लेकिन जन गोपाल के यहाँ बाकायदा संसम्मत का उल्लेख है, ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण, और उसमें एक घटना है दादू से मान सिंह की मुलाकात। मान सिंह जब आमेर का कामकाज संभालते हैं, दादू वहाँ रह रहे हैं। दादू के बारे में आमेर के गणमान्य नागरिक जाकर के मान सिंह से शिकायत करते हैं कि साहब ये वेद और कुरान दोनों की निंदा करते हैं, जात पात की निंदा करते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है, इनको आप समझाएंगे। तो मान सिंह जाते हैं दादू से मिलने के लिए, और दादू के खिलाफ एक शिकायत ये भी है जो सबसे बड़ी शिकायत है
कि उन्होंने अपनी कन्याओं का अभी तक विवाह नहीं, वो 20 साल की हो गई और 20 साल की कन्या बाप के घर में बैठी है, इससे बड़ा पाप तो कोई हो नहीं सकता। ये तो बड़ा पाप हो रहा है, और जब किसी राजा के राज में पाप होता है तो वो पाप राजा के ही सर आता है। तो आप समझाइए जाके। तो मान सिंह जाते हैं दादू से, और उसमें जब वो ये बाल विवाह का सवाल उठता है तो मैं नहीं जानता कि ये दादू का अपना वचन है या नहीं, क्योंकि दादू वाणी में नहीं मिला मुझे। लेकिन जन गोपाल के दादू, जन गोपाल अपने दादू से जो कहलवा रहे हैं वो सुनने लगे। और आप ध्यान दें कि इस पूरे वक्तव्य में कहीं जन गोपाल के दादू ये नहीं कह रहे कि वेद में ऐसा लिखा है, स्मृति में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है, हदीस में ऐसा हवाला मिला है। जन गोपाल के दादू सीधे सीधे मानवीय विवेक और सहज बोध को अप्रोच कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, वामन बनिया नृत्य बिली बंडा, 7 बरस की हुई जो रंडा, जिसको मन उठ भागे, इनको दोष कौन को लागे, ते क्यों रहे लोक की लाजा, परमेश्वर सू नहीं काजा, गर्भ गलिया की हत्या हुई, दोष दे सको लागे सोई, एक ब्रह्म को सदा विचारा, सील सांच को है अधिकारा, धरी बेसा सरु भजन कराही, इनको तुमको दोष न। सुनो राजा, जब ब्राह्मणों की और बनियों की बेटियां 7-7 साल की उम्र में विधवा हो जाती हैं और राह भटक जाती हैं तो उसका पाप किस पर आता है? ईश्वर और इज्जत की परवाह किए बिना जब लोग गर्भपात कराने पर मजबूर होते हैं तो किस पर पाप आता है? सच्चा सम्मान ब्रह्म के निरंतर ध्यान से उपलब्ध होता है। यही आप करें और दूसरों को भी करने के लिए कहें, यानी मुझे परेशान ना करें, और आपके ऊपर कोई पाप नहीं है। महत्वपूर्ण है ये कि 17वीं सदी का एक लेखक अपने समय की एक कुप्रथा बाल विवाह का विरोध करने के लिए किसी वेद पुराण का हवाला नहीं। ही इज अप्रोचिंग रैशनल, ही इज अप्रोचिंग इन अ रैशनल वे, द कॉमन सेंस, सहज बोध और विवेक को अप्रोच कर। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि 20वीं सदी तक, अभी तक बाल विवाह जिन इलाकों में प्रचलित है उनमें जन गोपाल का राजस्थान अग्रणी, जन गोपाल के प्रभाव का, दादू के प्रभाव का गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश अग्रणी। तो भारतीय इतिहास पर विचार करने का एक सवाल ये भी कि ऐसी क्या बाधाएं उत्पन्न हुई हमारे बौद्धिक और सांस्कृतिक इतिहास में कि जो चलता आ रहा था, जो लग रहा था कि विकास होगा, वो टूट गया। क्या कारण? एक कारण तो हमने देखा कि अपने वजह से ज्ञान कांड की कृपा से हमने अपने बौद्धिक विकास के नैरंतर्य को नकार दिया और हमने अपने सारे स्रोत संस्कृत, अरबी और फारसी तक सीमित कर लिए, देश भाषाओं की उपेक्षा कर दी। दूसरा कारण हमने ये देखा कि जब हम विउपनिवेशीकरण की बात करते हैं तो हम एक अजीब तरह की हवाई शुद्धता की मृग मरीचिका में फंसे, जो ऐतिहासिक अनुभव और हमारे रोजमर्रा के अनुभव के सर्व का विपरीत है। दोस्तों, आपके सामने ये सब कहने का मेरा अपना स्वार्थ ये है कि मुझे लगता है कि ये सवाल आज के नहीं बल्कि आने वाले भारत और दुनिया भर के लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आधुनिकता का आशय क्या है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसे आधुनिकता के प्रत्यावर्तन का समय कहा जाता है, रिवर्सल ऑफ मॉडर्न। 30-40 साल पहले जो चीज़ें मुझे हास्यास्पद लगती थी उनके बारे में आज हंसने में डर लगता है कि कहीं पिटाई ना हो जाए। आधुनिकता में जो एक विवेक था और तर्क का बल था वो भावनाओं के हवाले होता चला गया। ऐसी स्थिति में इन चीज़ों पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है, नौजवान पीढ़ी के लिए और भी अधिक जरूरी है। इसलिए मैंने आपके सामने ये अपने काम की एक छोटी सी रिपोर्ट को सवालात आपके सामने रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में कुलपति जी के नेतृत्व में और अन्य सभी वरिष्ठ साथियों के नेतृत्व में कुछ नौजवान रिसर्चर्स इन सवालों पर विचार करने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाएंगे। अगर ऐसा हो सका और उसके फलस्वरूप मेरा कुछ ज्ञानवर्धन हो सका, मेरी कही गई बातों का तर्क संगत खंडन हो सका अथवा मुझे उनको और सुधारने का अवसर मिल सका, तो मैं अपने इस व्याख्यान को देने को सार्थक मानूंगा। इस अर्थ में व्याख्यान सार्थक हो या निरर्थक हो, लेकिन निश्चित रूप से आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक
सुना। बीच में एक बार भी मोबाइल की घंटी बजा करके मुझे चिढ़ने का अवसर नहीं दिया। इसके लिए और ध्यान से सुनने के लिए आप सब लोगों का एक बार पुनः तरुण जी का और सभी वरिष्ठ साथियों का, कुलपति महोदय का We have been listening to Professor Purushottam Agrawal, and the House may agree with this line that he in fact has touched upon every aspect connected to Indian modernity and decolonization. He has taken us to European culture, European thinkers. मैं प्रोफेसर तरुण कुमार को अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा साहब, हमारे समादरणीय विद्वान वक्ता बंधुवर श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, हम सब के सामूहिक रूप से अभिभावक तुल्य प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, पटना विश्वविद्यालय के सभी माननीय पदाधिकारीगण, पटना विश्वविद्यालय के मानविकी एवं अन्य संकायों के अध्यक्ष तथा विभागाध्यक्षगण, प्राचार्य बंधुओं, सभी सहकर्मी प्राध्यापक बंधुओं, पटना के सम्माननीय प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, शोधार्थियों, स्नातकोत्तर स्नातक के शिक्षार्थियों, मीडिया के माननीय बंधुओं, कर्मचारी बंधुओं, आप सब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं आभार। माननीय कुलपति जी, आप देख रहे होंगे कि किसी अकादमिक कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपस्थिति शायद पुरुषोत्तम जी को भी कम ही नजर आती है, और इसका मतलब है बिहार ज्ञान का भूखा है, मिसगाइडेड भी होता रहा है और गाइडेंस की अपेक्षा रखता है। हम समझते हैं कि यदि हम लोग इस सिलसिले को जारी रखें तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ का जो रोना रोते रहते हैं वो रोना थोड़ा कम होगा। आज हमारे इस आमंत्रण को जितनी आत्मीयता से और तत्परता से पुरुषोत्तम जी ने स्वीकार किया, वो भी एक मिसाल है। हमको ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस विश्वविद्यालय परिसर में आप हैं, उस विश्वविद्यालय परिसर में और इस हॉल में 17 मार्च 1936 को रविन्द्रनाथ ठाकुर का नागरिक अभिनंदन है और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर, विश्व भारती की स्थापना को लेकर वो चंडे के लिए घूम रहे थे। गांधी जी ने मना किया कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप मत जाइए। उनके स्वागत के लिए राजेंद्र बाबू, जो उसमें पटना के मेयर थे, सच्चिदानंद सिन्हा जिसके अगुआ थे, वो सब लोग शामिल थे और इसी हॉल में पटना की ओर से 1111 रुपए की थैली विश्व भारती के लिए दी गई थी। और इसीलिए मैं आपको कहूं कि पटना विश्वविद्यालय के इस परिसर में और इस हॉल में मैथिली फ्रेंड ग्रुप आए हुए हैं। अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध का 7 दिनों तक लगातार लेक्चर हुआ। हिंदी के किसी भी बड़े आदमी का आप नाम देंगे, उनका पटना विश्वविद्यालय और इस हॉल में आगमन होगा। इसलिए इस हॉल में आपका स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी है। मैं एक पुस्तक का हवाला देना चाहता हूं, प्रोफेसर अग्रवाल की पुस्तक का, हु इज भारत माता, और ये किताब काफी चर्चित रही। इसमें नेहरू की विभिन्न जो पुस्तकें हैं, उनके कुछ अंश, उनके भाषण, उनके लेख, उनके पत्र और उनके कुछ इंटरव्यूज को एक जगह रखा है और 50 पृष्ठों से ऊपर की एक लंबी चौड़ी भूमिका लिखी और उसमें उन्होंने इस बात की
हमारा ध्यान दिलाया कि भारतीय जो आधुनिकता है उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, किस तरह से वो विकसित हुई है, और भारत में आधुनिकता की चर्चा अतिवादों से मुक्त होकर ही की है। ये लगातार उनका इस तरह है। आजकल एक दिशा बनी हुई है भारत की आधुनिकता पर विचार करने की कि भारत विश्व गुरु होने जा रहा है। भारत में प्राचीन काल से भी पहले जहाज बन रहा था। भारत में प्राचीन काल से पहले गणेश जी के मानवी धड़ पर हाथी का सर रख करके सर्जरी का उससे बड़ा ताकतवर नमूना न पहले पेश हुआ न आगे हो सकता। एक तो आधुनिकता की दिशा भारत में, और किंवदंतियों को, फैंटेसियों को, कथाओं को इतिहास बनाने और इतिहास को कथा बनाने की प्रवृत्ति बड़ी जोरों से चल रही है। आधुनिकता के इस हम लोग को थोड़ा सा मुक्त होने की जरूरत है। दूसरी तरफ आधुनिकता की एक समझ ये है कि अंग्रेजों ने हमें आधुनिक बनाया। वे न आते तो भारत असभ्य बना रहता। इसलिए हम सब लोगों को अंग्रेजों का कृतज्ञ होना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि गांधी जी का ये बहुत जोर दे के कहना था कि यदि अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया और अंग्रेजों ने हमें कुछ नहीं सब कुछ दिया जो कुछ हमारे पास नहीं था, तो फिर अंग्रेजों को हटाने का नहीं उनके रखने का वक़्त करना चाहिए। और जिनको भी आधुनिकता की समझ बनानी हो, उस समझ को बनाने में शायद 1909 में लिखित पुस्तक हिंद स्वराज भी काम आएगी कि आधुनिकता के कितने पहलू हो सकते हैं। जिस मैकाले साहब का हवाला दिया, उन्होंने बड़े हिकारे के भाव से कहा कि किसी यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय का एक शेल्फ, एक खाना का जो महत्व है वह भारत अरबिया के सभी देसी साहित्य से बढ़ा। ये मैकाले साहब का तर्क है। और ऐसी धारणा कुछ ओरिएंटलिस्ट लोगों ने भी बनाई, प्राच्यविदों ने भी बनाई। भारत सपेरों का देश है, भारत धन प्रधान देश है, भारत पूजा पाठ में लगा रहने वाला देश है, भारत घंट घड़ियाल में लगा रहने वाला देश है, और भारत जादू टोना सांप को नचाने वाला देश है। ये एक धारणा रही है। और इस धारणा के तहत ये माना गया कि अंग्रेज ना आए होते तो हम लोग सभ्य न हुए होते, हम लोग आधुनिक न हुए। भारतीय आधुनिकता की एक तीसरी समझ है जो कबीर की तरह मानती है कि संतों इन दोनों राह न पाए, इन दोनों ने जगह नहीं पाई। इन दोनों का कहना गलत है। न तो हवाई जहाज पुष्पक विमान के रूप में बना हुआ था, न कोई सर्जरी वो थी, कथा फैंटेसी है जिसके जरिए भी मुझको बहुत कुछ पता चलता है, बहुत सारी जानकारियां मिलती है, लेकिन वो विज्ञान नहीं है। और दूसरी ओर आप कह सकते हैं कि नेहरू ने अपनी पूरी जो समझ थी जिसको भारत के निर्माण में उन्होंने लगाया कि भारतीय इतिहास का बहुत जोर देकर कहते हैं कि यह सच रहा है कि बदलते परिवेश में अपने पुराने ख्यालों को कंडीशन करता रहा है, अनुकूलन करने की भारत की बड़ी भारी क्षमता रही है। और ऐसा मान जो काल से ही चला आ रहा है। और अतीत के प्रति, परंपरा के प्रति श्रद्धा एक साथ रही है, लेकिन उसके साथ स्वतंत्रता भी ली गई है, उसमें लगातार कुछ अपने ढंग से जोड़ने की कोशिश भी की गई है। हम कह सकते हैं कि भारत अपने इस स्वभाव के अनुरूप ही आधुनिक होता है। भारत में बुद्ध धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई कि मध्यम निकाय, बीच का रास्ता, और जिस बीच के रास्ते की ओर पुरुषोत्तम अग्रवाल भी बार बार जोर देते रहे हैं कि अतिवादों को तिरस्कृत करते हुए, डिस्कार्डिंग एक्सट्रीम्स, जो हुई भारत का जो सब टाइटल लगाया है कि हमें अतिवादों को तिरस्कृत करते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए भारत माता के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। भारत की सेवा का मतलब भारत के लोगों की सेवा, भारत के ज्ञान की सेवा, भारत के भावी पीढ़ियों की सेवा है। भारत माता का मतलब कोई एक सुंदर सी औरत बना दी गई या कोई लाचार सी औरत बना दी गई मूर्ति की न तो उपासना है न उसका तिरस्कार है। इसलिए जब कबीर के हवाले से और दूसरी सारी चीजों के हवाले से
पुरुषोत्तम जी अपनी बात कर रहे थे, तो जो कुछ उन्होंने कहा मैं उन्हीं के शब्दों में यदि उसका सारांश रखना चाहूँ तो तुकाराम और कबीर जैसे लोग थे जो वर्णाश्रम के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोग थे, और वर्णाश्रम के प्रति संघर्ष की एक और स्थिति थी और एक तरह से देशज आधुनिकता का निर्माण कर रहे थे। औपनिवेशिक जो आधुनिकता है, जिसको कॉलोनियल मॉडर्निज्म कह सकते हैं, मॉडर्निटी कह सकते हैं, उसका श्रेय केवल इतना ही है कि उसने देशज आधुनिकता को अवरुद्ध करके रखा, उसको रोक करके रखा, वर्णाश्रम में बल्कि नस्लवाद को जोड़ दिया, मनु के धर्मशास्त्र को एक मात्र शास्त्र बना देने का काम किया, मनुवाद की पुनः प्रतिष्ठा करने का काम किया, वाद विवाद से भरपूर उस सारे समय को स्तब्ध और जड़ मनोवृत्ति का काल है। कुल मिला जुलाकर 14वीं 15वीं शताब्दी से आरंभ हुई आधुनिकता, भारत में 14वीं 15वीं शताब्दी से आरंभ हुई आधुनिकता को केवल यूरोप की विशेषता बताते हुए हम ये भूल जाते हैं कि भारत के ज्ञान परंपरा के इस अपने लंबे इतिहास में बहुत कुछ है। और आज भी उन्होंने कहा, जोर देकर कहा कि एकेडमिक स्तर पर जितना प्रभाव रहा यूरोप का, लोक वार्ता के स्तर पर, लोक जीवन के स्तर पर, जिसको लोक वृत्त कहते हैं, पब्लिक स्फीयर कहते हैं, उस पब्लिक स्फीयर पर उसका आज भी तो बहुत बड़ा। और एक ऐसे विषय के लिए मैंने निमंत्रण में जितने लोगों से अनुरोध कर सकता था, शायद ही कोई विभाग रहा हो, पटना के शायद ही कोई सामाजिक सांस्कृतिक कर्म से जुड़े हुए लोग रहे जिनको मैंने निमंत्रण नहीं दिया। और मैंने देखा कि हमारी अपेक्षा से बहुत बहुत ज्यादा उपस्थिति हुई है। अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि इसमें हमारे मानविकी संकाय के जो विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने जितनी मेहनत की और जिस तरह से कोशिश की, वो उसके परिणाम के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरा, यदि कोई कारण हो सकता है तो पुरुषोत्तम अग्रवाल स्वयं हो सकता है। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि उस विश्वविद्यालय में एक पीढ़े पर हम लोग पढ़े, मेरे अग्रज बंधु की तरह थे। 2 साल पहले थे, मैं 2 साल बाद गया था, और वो रिश्ता आज भी बरकरार है, आज भी बचा हुआ है। और इस रिश्ते को बहुत अच्छे ढंग से आपने देखा कि हम लोगों ने जो एकेडमिक रूप दिया जा सकता है वो रूप हमको मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसे और भी कार्यक्रम होते रहेंगे। ऊपर का भी पूरा ये गैलरी से भरी हुई थी, नीचे भरा हुआ था, शायद कुछ लोग बाहर भी खड़े रहे होंगे। मतलब ये पटना विश्वविद्यालय को और किसी बड़े एंटरटेन की शायद जरूरत आगे होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सभी मानविकी समुदाय के विभागाध्यक्षों को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सारा परिश्रम उनका है, मैं केवल कैटलिस्ट का काम कर रहा था, उत्प्रेरक का काम कर रहा था। तुम ही गाते हो अपना गान, व्यर्थ में पाता हूँ सम्मान, ये गान उनके द्वारा गाया गया है, सम्मान मुझको इसलिए आप सबकी ओर से, पटना के बौद्धिक समाज की ओर से, पटना विश्वविद्यालय के एकात्मिक समाज की ओर से, माननीय कुलपति महोदय की ओर से, मानविकी संकाय की ओर से मैं बंधुवर श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का बार बार हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोगों का सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके होने के बिना इनका अस्तित्व न हो, आप हैं इसलिए वक्ता है। और आपने इतने धैर्य के साथ ऐसे गंभीर विषय को सुना, और जैसा कि उन्होंने कहा कि मोबाइल की घंटी न बजने दी, और आज के जमाने में कोई मोबाइल की घंटी रोके हुए है, इसका मतलब सर अपनी सांस रोके। तो हमारे निमंत्रण पर सबके अभिभावक चौधरी जी आए, हमारे मित्र रविंद्र जी हैं, सभी विभागों के अध्यक्ष रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत